ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਿਸ ਸੁਧਾ ਅਰੋੜਾ, ਜਗਮੋਹਨ ਅਰੋੜਾ, ਰੀਟਾ ਸਚਦੇਵਾ, ਅਨਿਲ ਸਚਦੇਵਾ, ਮਾਲਾ ਅਮਰ, अरविंद अमर, मनहर अरोड़ा, ऋतु राज अरोड़ा, मनीष अरोड़ा, सलोनी अरोड़ा, आशिम अरोड़ा, नीतिका, सिमरदीप सिंह, मिली गाबा, सिद्धार्थ गाबा, सोनल अमर, रजनी अमर, जानवी अमर, हुनर अरोड़ा, बारूनी अरोड़ा, प्रतिष्ठा, अवीर सिंह ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਹਾਲ ਦੇਵੀ ਤਲਾ ਮੰਦਿਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਵਯ ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਦਿਆਲ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੀ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਚਵਿੰਡਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ 8 ਜੁਲਾਈ 1935 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ LIC ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ LIC ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ LIC ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ LIC ਵਿੱਚ ਹਾਈਐਸਟ ਪੋਸਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਉન્નਤੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੂਬ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਿਸਿਸ ਪੁਸ਼ਪਾ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨਾਲ 7 ਮਾਰਚ 1962 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੀਆਂ ਸੁਧਾ, ਰੀਟਾ ਅਤੇ ਮਾਲਾ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਮਨਹਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰੀ ਸੁਖੀ ਵਿਆਹਤਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮਨਹਰ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ MD ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨੌਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੀਤੂ ਰਾਜ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਅਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ।
कहता है उस पल ही मौत से मुलाकात होगी, जिस पल जिंदगी की आखिरी शाम होगी। तेरे अपने ही जलाकर आएंगे तुझे, तेरी अहमियत तब बस खाक होगी, तेरी अहमियत तब बस खाक होगी। जीवन की सच्चाई है कि एक इंसान, एक मानव अपने तन पर, अपने इस शरीर पर कितना मान करता है, कितना गुमान करता है, लेकिन अंत में उसकी परिणति क्या है? मुट्ठी भर राख की ढेरी, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि हे मानव, अपने जीवन के विषय में जरूर चिंतन करो कि तुम इस संसार में आए हो, लेकिन सदैव के लिए नहीं, कुछ समय के लिए। जब वह कुछ समय समाप्त हो जाएगा, तब तुम्हें एक ना एक दिन अवश्य जाना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, जब हमने इस संसार को छोड़कर जाना ही है, तो फिर इस संसार में आए क्यों है? हमें ये जीवन मिला ही क्यों है? भक्तों, हमें ये जीवन इसलिए मिला है ताकि हम अपने जीवन को समझ सकें, अपने जीवन के उस सर्वोच्च लाभ को प्राप्त कर सकें। उसी को ही प्राप्त करने इस संसार में हम लोग आए हैं। और यदि हमने उस लक्ष्य को पूरा नहीं किया, तो फिर हमारे जीवन के विषय में किसी भक्त ने बहुत सुंदर कहा, वो यही कह रहा है समझाते हुए, वो जीवन क्या जिस जीवन में जीवन को मुक्त बना ना सके, मुक्त बना ना सके, मुक्त बना ना सके। वो हमें समझाते हुए क्या कह रहा है, आइए इसे भजन की व्याख्या सहित श्रवण करते हैं। हेलो हेलो। बीच में
तो डरा ना सके, हम उनको विवेकी नहीं कहते जो सतपथ को अपना ना सके। भक्त यहाँ पर हमें कितनी सुंदर प्रेरणा दे रहा है। इसलिए इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हमें जीवन को ही समझना होगा कि व्हाट इज लाइफ, कि जीवन क्या है। हर एक व्यक्ति की जीवन के संबंध में अलग अलग परिभाषाएं हैं। आप किसी गरीब आदमी से पूछ लो जीवन के बारे में तो वो कहेगा लाइफ इज स्ट्रगल एंड स्ट्रगल इज लाइफ। जीवन एक संघर्ष है और संघर्ष ही जीवन है। आप किसी रिच मैन से, किसी अमीर आदमी से पूछ लें जीवन की परिभाषा के विषय में तो वो कहेगा लाइफ इज मनी एंड मनी इज लाइफ। धन की जिंदगी है और जिंदगी ही धन है। एक पंछी है जो पिंजरे में बंद है, आप उससे जीवन के बारे में पूछें तो वो पक्षी क्या कहेगा जो पिंजरे में बंद है? वो कहेगा लाइफ इज प्रिजन एंड प्रिजन इज लाइफ। जीवन एक कैद खाना है और कैद खाना ही जीवन है। अब आप उस पक्षी को आजाद कर दीजिए, पिंजरे से उड़ा दीजिए। आप उससे अब पूछिए जीवन के बारे में तो वो कहेगा लाइफ इज फ्रीडम एंड फ्रीडम इज लाइफ। जिंदगी एक स्वतंत्रता का नाम है और स्वतंत्रता ही जीवन है। एक सोल्जर, एक सैनिक जो बॉर्डर पर खड़ा लड़ रहा है, अपने देश की रक्षा कर रहा है, आप उससे जीवन के बारे में पूछें तो वो कहेगा लाइफ इज बैटल एंड बैटल इज लाइफ। जीवन एक युद्ध है और युद्ध ही जीवन है। हर एक व्यक्ति की मनस्थिति, उसकी सोच, उसके विचार और बाहरी परिस्थितियों के आधार पर उसके जीवन की अलग अलग डेफिनेशंस, अलग अलग परिभाषाएं बन जाती हैं। लेकिन अब विचार करना होगा इतनी सारी परिभाषाओं में से वास्तविक जीवन की परिभाषा है क्या? एक बार एक जिज्ञासु गोस्वामी तुलसीदास जी के पास में आया। उसने यही प्रश्न गोस्वामी तुलसीदास जी से किया कि गोस्वामी जी, ये जीवन वास्तव में है क्या? जीवन में जब सुख आते हैं तो जीवन आम जैसा मीठा लगता है, लेकिन जब जीवन में दुख आते हैं तो यही जीवन नीम जैसा कड़वा लगने लग जाता है। वास्तव में जीवन है क्या? तो उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस जिज्ञासु की समस्या का समाधान करते हुए कहा कि जीवन तो एक कल्प वृक्ष है। इसके नीचे बैठकर जैसा कर्म करोगे, जैसा विचार करोगे, जीवन तुम्हारा वैसा ही बन जाएगा। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के हेड फाउंडर हमारे परम पूजनीय गुरुदेव आशुतोष महाराज जी जीवन के विषय में अक्सर आप एक बात कहा करते हैं, जीवन तो एक साधना है जिसमें तन को, मन को, चित्त को, विचारों को साधना होता है। और इसीलिए ही हमें यह जीवन मिला है, इसी स्थिरता को प्राप्त करने के लिए ही हमें यह जिंदगी मिली है। इसलिए भक्तों कहा जा सकता है कि जीवन एक अवसर है, इसे अर्थ देना या निरर्थक करना इंसान के अपने हाथ में है। अब विचार करना है अर्थ देना क्या है और निरर्थक करना क्या है। यदि एक इंसान अपने जीवन के लक्ष्य को, उस उद्देश्य को जानकर उसकी ओर बढ़ता है तो यही है जीवन को अर्थ देना। लेकिन जीवन के लक्ष्य को जानते, समझते, बूझते हुए भी उसके प्रति अपनी आंखों को बंद कर देना, उससे दूर हो जाना, उससे पथभ्रष्ट हो जाना ही वास्तव में जीवन को निरर्थक करना है। इसीलिए सबसे पहले आज हम यहाँ पर बैठे हैं तो हमें विचार करना होगा कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। इसके विषय में स्वामी विवेकानंद जी बहुत सुंदर कहते हैं। वो कहते हैं दिस ह्यूमन बॉडी इज अ प्राइसलेस गिफ्ट रिसीव्ड आफ्टर इन्यूमरेबल बर्थ्स एंड rebirths. The main aim of this human life is to attain God. स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि ये जो मनुष्य का
मनुष्य का जीवन है, मनुष्य की जो योनि है, उस परमात्मा का एक प्राइसलेस अर्थात अमूल्य गिफ्ट है, उपहार है। और ये जो जीवन है वो न जाने कितने जन्म और मृत्यु के पश्चात अर्थात कितने पुनर्जन्म के पश्चात यह जीवन मिलता है। और इस जीवन को प्राप्त करने का केवल मात्र एक ही उद्देश्य है, और वह उद्देश्य है उस परमात्मा की प्राप्ति कर लेना, उस परम गति को प्राप्त कर लेना जिसे मोक्ष, निर्वाण पद, कैवल्य पद या साल्वेशन कहा जाता है। उस गति को प्राप्त करने के लिए ही हमें यह जीवन मिला है और उसे प्राप्त करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। लेकिन आज इंसान सब कुछ जानता हुआ, समझता हुआ भी अपने लक्ष्य को भुलाकर केवल अपने इस मनुष्य शरीर तक, इस शरीर तक ही सीमित रह गया। लेकिन इस शरीर की वास्तविकता क्या है? किसी ने बहुत अच्छा कहा, तन की क्या औकात है, खुल जाएगा राज। मिट्टी ने जिस दिन दी इस मिट्टी को आवाज, कि जिस दिन इस धरा की मिट्टी ने इस शरीर की मिट्टी को आवाज लगा दी ना, फिर इस जीवन की, इस शरीर की वास्तविकता सामने आएगी। और वो वास्तविकता क्या है? वो वास्तविकता एक ही है, 2 दिन का जग में मेला रे, सब चला चली का खेला। कोई चला गया कोई जावे, कोई गठरी भांत सिधारे, सब चला चली का खेला। जग में 2 दिन का मेला रे, सब चला चली का खेला। कर पाप कपट छल माया, धन लाख करोड़ कमाया, संग चले ना एक अढ़ेला, सब चला चली का खेला। सुत नारी मात पित भाई, कोई अंत सहायक नाही, फिर क्यों भरता पाप का ढेला, सब चला चली का खेला। ये तो नश्वर है सब संसारा, कर ले भजन ईश का प्यारा। ब्रह्मानंद कहे सुन चेला, सब चला चली का खेला। जग में 2 दिन का मेला रे, सब चला चली का खेला। ये जीवन की सच्चाई है कि जो इस संसार में आया है उसे इस संसार को छोड़कर जाना ही है। इस संसार में चला चली का खेला, आने और जाने का खेल चल रहा है। जो इंसान इस बात को समझ जाता है वो अपने जीवन के सर्वोत्तम लाभ को प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो नहीं समझ पाता उससे बड़ी हानि अपने जीवन में वो कुछ भी नहीं कमा पाता। एक संत हुए हैं जालन जी, कहते हैं कि संत बनने से पहले की एक घटना ने उन्हें उनके जीवन में जागृत कर दिया। क्या घटना घटित हुई उनके जीवन में? उनकी जो बेटी थी विवाह की योग्य हो गई, तो जालन जी की पत्नी ने बेटी की कुंडली अपने पति जालन जी के हाथ में थमाई और कहा कि जाइए पंडित जी के पास में जाइए और एक अच्छे वर के बारे में पूछ कर आइए। अब जालन जी बेटी की कुंडली को लेकर के चल पड़े हैं। रास्ते में किसी घर के बाहर से बड़े रोने की आवाज आ रही थी, काफी भीड़ लगी थी। जालन जी रुक गए, रुक करके किसी भीड़ में खड़े एक व्यक्ति से पूछने लगे अरे भाई क्या हो गया? तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई ये वैद्य जी का घर है, वैद्य जी के बेटे की मौत हो गई है इसीलिए यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हुए हैं। वैद्य जी के बेटे की मौत हो गई कैसे? तो उसने कहा भाई वैद्य जी का बेटा काफी दिनों से बीमार था इसलिए मृत्यु को प्राप्त हो गया। जालन जी ने कहा वैद्य था, दवाइयों का औषधियों का संपूर्ण ज्ञान था, फिर भी अपने बेटे को बचा नहीं पाई। तो उस व्यक्ति ने कहा अरे भाई मौत पर किसका वश है? कौन किसी को जाने से रोक सकता है? ये औषधियां भी तब काम नहीं आती। जालन जी आगे बढ़ गए, पंडित जी के घर पहुंचे तो वहां पर एक छोटी सी उम्र की एक लड़की सफेद रंग के वस्त्र पहने खड़ी थी। जालन जी ने पंडित जी से पूछा पंडित जी ये कौन है? तो पंडित जी ने कहा ये मेरी पुत्री है, छोटी उम्र में ही विधवा हो गई। तो उस समय जालन जी ने कहा क्या आपने अपनी बेटी की कुंडली पर विचार नहीं किया था? क्या आपने अपनी बेटी की कुंडली उसके होने वाले वर, उसके होने वाले पति की कुंडली के साथ मिलान करके नहीं देखा था? पंडित जी ने कहा सब कुछ किया था भाई, लेकिन भाभी को कौन रोक सकता है? मौत से कौन बचा है? कोई भी नहीं बच सकता। उस समय जालन जी के हृदय पर चोट लगी और उनके हृदय से एक ही विचार निकला, घर वेदना दे पिटना, घर ब्राह्मण दे रण, चल जालन घर अपने सखा देखी
में कोई किसी का अपना नहीं, कोई किसी का सगा नहीं, कोई किसी की सहायता नहीं कर सकता। जब उसके घर से बुलावा आता है तो उसे जाना ही पड़ता है। कोई उसे रोक नहीं सकता, कोई उसे बचा नहीं सकता। इसलिए जाहलन क्यों इस संसार में अटका है? क्यों नहीं तो उस संसार के रचयिता उस ईश्वर के साथ में जुड़ करके अपने जीवन को सफल कर लेता। जाहलन जी इस घटना से इतने प्रभावित हुए कि वो संत बनकर उन्होंने अपने जीवन को सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ाया। लेकिन हमने अपने जीवन में न जाने ऐसी घटनाओं को कितनी बार देखा है। क्या हम अपने जीवन में जागृत हो पाते हैं? क्या हम अपने जीवन की नश्वरता के बारे में चिंतन कर पाते हैं कि हमने भी एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना है? तो क्यों ना जाने से पहले हम भी हमारे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर अपने जीवन को सफल कर लें। क्योंकि जो अपने जीवन के रहते रहते जीवन को जानकर जीवन को मुक्त बनाने की कला को नहीं सीखता, उस व्यक्ति को सत्य पथ का अनुगामी कोई भी नहीं बना सकता, उस व्यक्ति को कोई विवेकी नहीं कह सकता। इसीलिए भक्त ने यही कहा कि अपने जीवन में जीवन को मुक्त करने की कला को सीखो, मुक्त करने की कला को सीखो। और आगे भक्त हमें समझाता हुआ क्या कह रहा है, आइए श्रवण करते हैं। कोई धन बल में है फूल रहा, कोई ऊंचे पद पर झूल रहा। कोई धन बल में है फूल रहा, कोई ऊंचे पद पर झूल रहा। पर ये तो सब निरर्थक है, जो काम किसी के आ ना सके। वो जीवन क्या जिस जीवन में, वो जीवन क्या जिस जीवन में। कोई धन बल में है झूल रहा, कोई ऊंचे पद पर फूल रहा। पर ये तो सब निरर्थक है, ये काम किसी के आ ना सका। कितना सुंदर समझा रहा है एक भक्त कि आप अपने जीवन में कितना मर्जी धन एकत्रित कर लीजिए, कितना मर्जी बल आ जाए, ऐश्वर्य आ जाए, वैभव आ जाए, सुख समृद्धि आ जाए, लेकिन इनमें से कुछ भी हमारे अंत समय में हमारा सहाय नहीं बन सकता। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ कहते जिस समय वो डेथ बेड पर थी, अंतिम समय चल रहा था, बीमार थी, डॉक्टर्स ने उनका चेकअप किया तो डॉक्टर्स ने कहा कि महारानी आपका अंत समय अत्यंत निकट है। तो उन्होंने कहा तो मेरी आधी से ज्यादा संपत्ति रख लो, लेकिन मेरी जीवन आयु को बढ़ा दो। डॉक्टर्स ने कहा महारानी जी ऐसा नहीं हो सकता, आपको जाना ही पड़ेगा इस संसार को छोड़कर। तो उस समय एलिजाबेथ ने कहा कि ये मेरी धन संपत्ति है इतनी, मेरे रिश्तेदार हैं, क्या कोई मेरी सहायता नहीं कर पाएगा? डॉक्टर्स ने कहा नहीं महारानी, अंत समय में ना आपका ऐश्वर्य आपका साथ देगा, ना धन संपत्ति साथ देगी, और ना ही आपके रिश्तेदार आपका साथ देने वाले हैं। इसलिए अब आप उस भगवान से संबंध स्थापित कीजिए जो जिस भगवान के घर आपने जाना है। तो उस समय एलिजाबेथ कहते कि सिर के ऊपर अपना हाथ मारकर पछताई, पर मन में उसके एक ही विचार आ रहा था कि जब ये सब मेरा साथ निभा ही नहीं सकते थे तो मैं किस पर इतना सारा जीवन मांग करती रही। एक बहुत बड़े हैं साइंटिस्ट हुए आइंस्टाइन, जब अंत समय में थे तो एक रिपोर्टर उनके पास में आया। रिपोर्टर ने पूछा आप बड़ी प्रसन्नता के साथ इस संसार को छोड़कर जा रही है ना? तो आइंस्टाइन ने जानते हो क्या कहा? उसने कहा कि उन्होंने कहा कि मैंने इस संसार में आकर बहुत सारी खोजें की, लेकिन जिसकी खोज करने के लिए मैं इस संसार में आया था वो ईश्वर, उसे नहीं खोज पाया, इसलिए एक पछतावे के साथ इस संसार को छोड़कर जा रहा हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर
जिन्होंने 6000 कविताएं इस मानव समाज को दी। अंत समय में एक रिपोर्टर उनके पास में बैठा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उस रिपोर्टर से कहा कि अरे भाई, दैट सॉन्ग रिमेन्ड अनसंग टिल दिस डे। वो कहते कि वो गीत जिसे गुनगुनाने के लिए, जिसे गाने के लिए मैं इस संसार में आया था, वो गाना मैंने आज तक ना लिखा ना गाया, इसलिए एक गहन पछतावे के साथ इस संसार को छोड़कर जा रहा हूं। विश्व विजेता सिकंदर जिसे कहते जिस समय उसने भारत की ओर मुख किया, तो आचार्य चाणक्य ने सिकंदर से कहा कि सिकंदर, इस जमीन के टुकड़ों को जीतकर क्या करोगे? अरे मन को जीतो, मन को जीतो। जिसने मन को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया। लेकिन सिकंदर नहीं माना, रक्त की उसने नदियां बहा दी, आगे बढ़ रहा है। लेकिन जब उसका अंत समय आया तो उसने अपने सैनिकों से कहा कि मेरे दोनों हाथ मेरे जनाजे से, मेरे कफन से बाहर निकाल देना, ताकि लोग समझ जाएं कि विश्व विजेता सिकंदर, जिसने इतना धन एकत्रित किया, वो भी अपने साथ कुछ नहीं लेके जा पाया, कुछ भी नहीं लेके जा पाया। इसलिए भक्तों, आज हमें भी विचार करना है, ना हमारा धन हमारे साथ जाएगा, ना बल एक हमारे साथ जाएगा, ना मान जाएगा, ना ऐश्वर्य जाएगा, ना पद जाएगा, फिर जाएगा क्या हमारे साथ? हमें फिर क्या इकट्ठा करना है जो हमारे साथ जाएगा? इसके विषय में किसी भक्त ने बहुत सुंदर कहा। वो कहता है, और ये 5 मिले 5 तत्व में, छठा कहाँ जाए रे? ज्ञानी पूछे पूछ पुछारत जग जाने ना। वो कहता है, ये 5 तत्व का जो शरीर है, 5 तत्व का ये माटी का पुतला, जिस समय मृत्यु का समय आता है, ये 5 तत्व अपने अपने मुख्य तत्वों में विलीन हो जाते हैं। लेकिन इस शरीर में एक छठा तत्व है जिसे आत्मा कहा गया है। जो अपने जीवन में आत्मा को जान लेता है, इस आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वही इस संसार में सबसे बड़ा ज्ञानी है, क्योंकि यही जीव का साथ निभाने वाली है। नॉर्थम्ब्रिया के ड्यूट राजा एडविन एक दिन अपने राजसभा में बैठे हुए थे कि उनकी सभा में एक पॉलिनस नाम का धर्म प्रचारक आया और उसने उनसे स्वीकृति मांगी कि मैं आपके राज्य में धर्म का प्रचार करना चाहता हूँ। तो एडविन जो राजा हैं, उन्होंने अपने मंत्रियों से पूछा कि बताइए, क्या पॉलिनस को अनुमति दे देनी चाहिए कि वो हमारे राज्य में धर्म का प्रचार करें? तो उन मंत्रियों में से एक बहुत समझदार मंत्री था। उस मंत्री ने कहा, देखिए राजन, अभी अभी इस राजभवन में, इस सभा में बाईं ओर के झरोके से एक चिड़िया आई। थोड़ी देर तक वो चिड़िया इस सभा में इधर उधर फुदकी, चहचहाई और दाईं ओर के झरोके से बाहर निकल गई। यही कहानी तो हमारी भी है। हमारे शरीर रूपी, इस देह रूपी राजसभा में कोई जीवत पक्षी है जो कहीं से उड़कर आता है, जिसके कारण से ये शरीर बोलता है, संसार की क्रियाकलाप करता है। लेकिन वो जब जीवन पक्षी निकल जाता है तो शरीर मिट्टी की ढेरी हो जाता है। यदि पॉलिनस हमें ये बता पाए कि वो जीवन पक्षी कौन है, तो इसका प्रचार करना हमारे राज्य के लिए हितकर होगा राजन। तो उस समय राजा एडविन ने पॉलिनस धर्म प्रचारक से पूछा, बताइए वो जीवन पक्षी कौन है? तो उस पॉलिनस ने कहा कि वो जीवन पक्षी है हमारी आत्मा। ये आत्मा ही है जिसके कारण हमारा शरीर संसारिक क्रिया व्यवहार करता है। लेकिन जिस समय ये आत्मा इस शरीर का त्याग कर देती है तो ये शरीर निर्जीव बन जाता है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, इसी आत्मिक ज्ञान को प्राप्त करना ही हमारे जीवन का प्रथम लक्ष्य है, हमारे जीवन का प्रथम उद्देश्य है। इसलिए इस आत्मा को जानो, इस आत्मा के द्वारा ही हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। लेकिन ये आत्मा का ज्ञान हमें कौन प्रदान करेगा, ये कैसे प्राप्त होता है, इसके विषय में आगे भक्त क्या कह रहा है, आइए श्रवण करते हैं। जो ऊंचे पहुंचे संत जन है, उनसे पूछो पथ की
सम्मान मिला, तुझको घर मकान मिला। कैसा भाग्यवान तू जो तुझको ना भगवान मिला। दाल रोटी माल मिला, ये सबको हर हाल मिला। मीरा से जाकर पूछो उसको कैसे गिरधर गोपाल मिला। मीरा से जाकर पूछो उसको कैसे गिरधर गोपाल मिला। भक्त यही समझा रहा है, यदि जीवन के उस महत्वपूर्ण लक्ष्य के विषय में जानना चाहते हो, उस भगवान को प्राप्त करने का रास्ता जानना चाहते हो, उसे समझना चाहते हो, तो आप बाहर बाट के बीच मिले वो तुझको राह बता ना सके। जो इस संसार में रहने वाला, विचरण करने वाला व्यक्ति है, आम इंसान है, आप उससे इसके बारे में पूछोगे तो वो नहीं बता सकता। कौन बता सकता है? जो ऊंचे पहुंचे संत जन है, उनसे पूछो पथ की बातें। जो संत हैं, जो गुरु हैं, उनसे जाकर इस अध्यात्म के रास्ते के बारे में पूछोगे तो वो आपको बताएंगे कि वो रास्ता कैसा है। आप देखिए, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कई बार न्यूज़पेपर्स में एक छोटी सी पजल आती है, आपने कई बार देखा होगा। और विशेष तौर पर बच्चों का जो कॉर्नर होता है, उसके अंदर एक साइड पे भूल भुलैया बनी है, नीचे एक बच्चा खड़ा है, ऊपर एक घर बना है, नीचे लिखा होता है ये बच्चा अपने घर का रास्ता भूल गया है, आप इसकी मदद कीजिए ताकि अपने घर तक पहुंच सके। तो हम क्या करते हैं? हम एक पेन या पेंसिल लेते हैं, हम रास्ते को खोजते हैं, उस पहेली में से कई बार वो रास्ता आगे से बंद होता है, फिर हम दूसरे रास्ते की ओर जाते हैं और उस बच्चे को उसके घर तक पहुंचाने का रास्ता हम ढूंढ लेते हैं उस पहेली में से। ये कहानी केवल एक अखबार में जो आई है, छपी है, ये केवल एक एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। समझिए तो ये हमारे जीवन की ही कहानी है। आप कहेंगे कैसे? हम भी इस संसार रूपी भूल भलैया में आकर के यहाँ पे कहीं खो गए हैं। हमें हमारा जो वास्तविक घर है, हमारा वास्तविक घर क्या है? हम वासी उस देश के जहाँ पार ब्रह्म का खेल, दिया जले अगम का, फिर बाती बिनते। हमारा जो घर है वो परमात्मा का घर है, जो परमात्मा जहाँ वास करता है वो हमारा वास्तविक घर है। इस संसार रूपी भूल भुलैया में आकर भटक गए, उलझ गए, अपने वास्तविक घर जाने का रास्ता ही भूल गए। अब ये पहेली हमारे सामने भी है कि कौन है जो हमें भी इस संसार रूपी भूल भुलैया से निकाल कर हमारे वास्तविक घर तक लेकर के जाएगा। तो इसका उत्तर दिया कबीरदास जी ने। वो क्या कहते हैं? कौन है जो तुम्हें इस भूल भुलैया से निकालेगा? वो कहते हैं, गुरु बिन कौन बतावे बाट, बड़ा विकट यम घाट, भ्रांति की पहाड़ी, अहंकार की नदियां, गुरु बिन बतावे कौन बतावे बाट। वो कहते हैं कबीरदास जी कि गुरु के बिना तुम्हें वो बाट यानी रास्ता, वो रास्ता कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आगे यमों का डेरा है, बीच में भ्रांतियों के बड़े बड़े पहाड़ हैं, अहंकार की नदी बह रही है। कैसे पहुंचोगे अपने घर तक? अरे घर तक पहुंचने का रास्ता तो एक गुरु ही बताएगा, और वो गुरु के बिना आप अपने रास्ते तक, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए महापुरुष कहते हैं, दुर्लभो, कहते हैं दुर्लभो मानुष्य कि ये एक जीवात्मा हो जिसे इस जीवन के अंदर मनुष्य का शरीर इतनी मुश्किल से मिला है। इस शरीर को यूं ही व्यर्थ मत गवाइए, गुरु के पास जाकर, उसकी शरण में जाकर उस रास्ते को पता कीजिए। और विष्णु पुराण में एक छोटी सी घटना आती है इसके विषय में। एक ऋषि हुए निदाग, पुलस्त्य ऋषि के पुत्र निदाग, बड़े शास्त्र धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा, बड़ा जप तप किया, बड़े नियमों का पालन किया, लेकिन सब कुछ जानने के बाद, पढ़ने के बाद, समझने के बाद भी उनके हृदय का शोक दूर नहीं हुआ, उनके हृदय की पीड़ा दूर नहीं हुई। वो उस रास्ते को जान ही नहीं पाए जिस पर चलकर उस मंजिल को प्राप्त किया जाता है, उस मुक्ति को प्राप्त किया जाता है। एक दिन उदास बैठे हैं आश्रम में कि उसी समय ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋषि विभु का आगमन हुआ। तो उस समय निदाग ने
चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि आप तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इस संसार के विषय में आपको संपूर्ण ज्ञान है, उस अध्यात्म के बारे में भी आपको संपूर्ण जानकारी है। कृपया मुझे भी बताइए कि मैं कैसे मुक्ति को प्राप्त करूं। मैंने इतने ग्रंथों को पढ़ लिया, इतने तीर्थों पर जा आया, इतने जप तप नियम व्रत यज्ञ अनुष्ठान दान सबका मैंने पालन कर लिया, लेकिन आज तक मैं उस मुक्ति के मार्ग को प्राप्त नहीं कर पाया। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए, कृपया मुझे बताइए कि मैं कैसे उसको प्राप्त करूं। तो उस समय ऋषि विभु ने कहा, निधान तुम बाहर से जितना मर्जी प्रयास कर लो, उस मुक्ति के मार्ग को प्राप्त करने की तुम नहीं प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि जब तक तुम्हें आत्मा का ज्ञान नहीं हो जाएगा, जब तक तुम अपनी आत्मा को नहीं जानोगे, तब तक तुम मुक्त नहीं हो पाओगे। और उस समय निदाग ने कहा, तो गुरुवर मुझे वो आत्मा का ज्ञान दीजिए जिससे मैं मुक्ति के मार्ग पर पहुंच पाऊं। तो उस समय ऋषि विभु ने निदाग के मस्तक पर हाथ रखा, उनके दोनों भ्रुकुटियों के मध्य यह स्थान जहां तिलक या बिंदी लगाते हैं, यहाँ एक तीसरा नेत्र होता है जिसे दिव्य दृष्टि कहा जाता है। उस समय उन्होंने निदाग की दिव्य दृष्टि को खोलकर उन्हें एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट करके, अर्थात बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बनाकर उनकी आत्मा का दर्शन करवा दिया, उनकी आत्मा का ज्ञान करवा दिया। और उस समय ऋषि विभु ने निदाग से कहा, निदाग इस आत्मज्ञान को प्राप्त कर, इसकी साधना कर ही तुम जीवन में मुक्त हो पाओगे, उस परम गति को प्राप्त कर पाओगे। और यही देखने को मिलता है हमें श्रीमद् भागवत महापुराण में, जिसमें राजा परीक्षित को जब श्राप मिला कि 7 दिवसों के पश्चात तक्षक नाग के डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो वो शुकदेव मुनि महाराज के पास में गए। और जिस समय शुकदेव मुनि महाराज के पास गए, उन्होंने उन्हें भागवत सुनाई और भागवत को सुनाकर यही आत्मज्ञान दिया। और आत्मज्ञान देकर के शुकदेव मुनि महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, परीक्षित अब मैंने तुम्हें आत्मज्ञान दिया है, अब इसकी ध्यान साधना करो तो तुम मुक्त हो जाओगे। और कथा बताती है कि परीक्षित ने इस आत्मज्ञान को प्राप्त करके ऐसी साधना की कि साधना करते करते इस समाधि की अवस्था में चले गए, और समाधि की अवस्था से ही सविकल्प समाधि से निर्विकल्प समाधि में गए। और फिर उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार अपने प्राणों को पहले ही इस देह से अलग कर दिया। निश्चित समय पर तक्षक नाग आया, नाग ने डसा भी, लेकिन उससे पहले ही राजा परीक्षित मुक्त हो चुके थे। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि आप भी अपने जीवन के रहते रहते ऐसे ही आत्मज्ञान को प्राप्त कीजिए, आत्मा का दर्शन को प्राप्त कीजिए, और दर्शन करके उसका निरंतर ध्यान साधना अभ्यास की गहराइयों में उतर कर ही एक जीवन में रहते हुए, जीवन रहते रहते उस मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए भगवत प्रेमियों, हम भी हमारे जीवन में ऐसे ही आत्मज्ञान को प्राप्त करें। और भगवत प्रेमियों, आज आप यह प्रस्तुति श्रवण कर पा रही हैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से। और यदि आप इस आत्मज्ञान के विषय में और अधिक जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यही जालंधर सिटी में हमारा आश्रम है। आप आश्रम का एड्रेस नोट कर सकते हैं, हाउस नंबर 398, मास्टर मोता सिंह नगर। यहाँ आश्रम है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का। और यहाँ पर सदगुरु आशुतोष महाराज जी की कृपा से ऐसे आत्मज्ञान के संबंधित विचार दिए जाते हैं, और उनकी कृपा से ऐसा आत्मज्ञान करवाया भी जाता है। यदि आप इसके विषय में और अधिक जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप आश्रम में आ सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप ऐसे आत्मज्ञान को प्राप्त कर अपने जीवन को सफलता के मार्ग पर आगे लेकर के जाते हैं, तो भक्तों यही दिवंगत आत्मा के प्रति हमारी ओर से सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसलिए आइए चलते चलते एक बार फिर से इन्हीं विचारों को हम श्रवण करते हैं। जीवन क्या जिस जीवन में, वो जीवन क्या जिस
जीवन में, हो जीवन क्या जिस जीवन में, जीवन को मुक्त बना ना सके हम, उनको विवेकी नहीं कहते, जो सतपथ को अपना ना सके वो जीवन क्या जिस जीवन में। जैसे कोई हमारा कोई परिचित इस संसार को छोड़कर जाता है तो हमारी सनातन धर्म के अनुसार गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। इस गरुड़ पुराण के अंदर एक जीव की विभिन्न प्रकार की गतियों का वर्णन है कि कैसे जीव यदि ऐसा दुष्कर्म करता है तो उसे किस प्रकार की गति मिलती है, यदि वो ऐसा शुभ कर्म करता है तो उसे कैसी गति मिलती है। विस्तार के साथ में इस पुराण में वर्णन देखने को मिलता है जीव के उसके कर्मों के अनुसार अलग अलग प्रकार की गति है। लेकिन यही इसी गरुड़ पुराण के अंदर एक और गूढ़ तथ्य भी लिखा गया है हमारे महापुरुषों के माध्यम से। वो यह है कि जब एक जीव जिसे मनुष्य का तन मिला है उस ईश्वर की कृपा से, उस परमात्मा की कृपा से यदि वह अपने जीवन में एक पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ आत्मज्ञानी संत सतगुरु की शरण को प्राप्त करके इस आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तो इस आत्मज्ञान को प्राप्त करके जब वह उसकी निरंतर साधना का अभ्यास करता है, उसके घट के भीतर ऐसे ज्ञान की ज्योति जलती है, तो इस ज्ञान की ज्योति में उसके समस्त प्रकार के कर्म, चाहे वह शुभ है चाहे वह अशुभ है, सारे के सारे प्रकार के कर्म उस ज्ञान की ज्योति में जल करके स्वाहा हो जाते हैं और फिर वह स्वर्ग और नरक इन दोनों ही अवस्थाओं से ऊपर उठकर उस अपवर्ग अर्थात एक ऐसा स्थान जहां पर पहुंचने के बाद वापस आना और जाने का चक्र खत्म हो जाता है, उस मोक्ष पद की वह प्राप्ति कर लेता है। इसीलिए भक्त प्रेमियों, हम भी हमारे जीवन के अंदर इसी आत्मज्ञान को प्राप्त कर अपने जीवन को सफल करें, सार्थक करें। और भक्त प्रेमियों, यदि हम ऐसे विचारों को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो आप देखें भक्त प्रेमियों कि हमारे पूज्य पिताजी जो इस संसार को छोड़कर के गए हैं, उन्होंने संसार में जीवित रहते रहते अपने रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को, परिचितों को बहुत कुछ दिया। और कैसी पुण्यात्मा है कि आज जाते जाते भी हमें कितने दिव्य विचार दे रहे हैं कि किस प्रकार से हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं, सार्थक कर सकते हैं। इसलिए भक्तों, यदि विचारों को हम अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो यही दिवंगत आत्मा के प्रति हमारी ओर से सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसीलिए हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से ईश्वर के चरणों में यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि प्रभु दिवंगत आत्मा को अपने चरणों की शरण सदैव प्रदान करते रहें, अपना कृपा हस्त सदैव उनके प्रति बना करके रखें। और साथ ही साथ यह दिवंगत आत्मा अपने पीछे कुछ शोक संतप्त परिजनों को छोड़कर गई है, जिनमें हैं इनके पुत्र श्री मनोहर अरोड़ा जी, पुत्रवधू हैं श्रीमती ऋतुराज अरोड़ा जी, दामाद हैं जगमोहन अरोड़ा जी और पुत्री है सुधा अरोड़ा जी, एक और दामाद हैं अनिल सचदेवा और गीता सचदेवा जी, अनिल अमर और माला अमर जी। इन सभी के लिए भी हम प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इन्हें इस शोक की घटनाओं से बाहर निकलने की शक्ति और सामर्थ्यता प्रदान करें। तो आप जल्दी जल्दी एक और गीत को श्रवण करते हैं, वही सरल नाम
लिए अपने नेत्रों को बंद करेंगे। प्रभु से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे और गायत्री मंत्र का और शांति पाठ का उच्चारण करेंगे सभी मिलकर। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अब हम आगे का मंच संचालन पंडित जी को देना चाहेंगे। पूजा मूलम गुरुर्परम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शान्ताकारं भुजगसेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। बोलो सतगुरु महाराज की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो गरुड़ जी महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, आप सभी सुदर्शन अरोड़ा जी की शोक सभा में इकट्ठे हुए हो। आज इस परिवार पर जो दुख की घड़ी बीती है,
इससे सहन करने की शक्ति देने के लिए भगवान से ये प्रार्थना करें कि जो बहनों ने ये प्रवचन किए हैं, जो हमें कान रूपे दोनों में इनको सुना है और हमने मुख रूपे इससे हमने कुछ बोला है, मुंह से बोला है, इसको उनके खाते में जमा कर दें, क्योंकि जो चीज़ हमको दिखाई देती है, जो चीज़ को यूज करते हैं वो सब नश्वर है। साथ जाता है तो भगवान का नाम ही जाता है। हम उनके लिए कुछ नहीं दे सकते, दें तो यही दें कि जो हमने कुछ सुना है, कुछ बोला है, उनके खाते में जमा हो जाए। कहते राम राम सब कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे, सहस कोट फल होए, सहस्र कोट फल होए। राम 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 कहते रहे, लेकिन दशरथ कोई नहीं कहता है। दशरथ कहने का मतलब यही है कि अपने 10 इंद्रियों को बस में करके और एक बार राम का नाम ले लो, हजारों रामों का नाम लेने के बराबर होता है। तो इसलिए आप एक संकल्प कर ले कि जो हमने ये भगवान का नाम स्मरण किया है, ये उनके खाते में जमा हो जाए। भगवान उनको अपने चरणों में रखें और उनके मुक्ति प्रदान करें। इनके परिवार पर जो संकट आया, इस संकट को सहन करने की शक्ति दें। बाकी इनकी याद है, जो काफी याद वो छोड़ के भी गए हैं, पूरा परिवार छोड़ के गए हैं। इससे समय का अभाव होने के कारण हम ये कहते हैं कि रस्म पगड़ी होगी। मौत एक बड़ी बड़ी विडंबना है। ये यीशु तो पूछा गया कि संसार सब तो हैरान करने वाली केड़ी गल है, उसने कहा कि संसार सब तो हैरान करने वाली गल ये है कि मनुख अखी नाल शमशान घाट में जा रहा है, पर उसके मन में ये दृढ़ता नहीं होती कि मैं नहीं जाना है। इस गल की प्रोक्ता गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी बाणी में की है। साधो रचना राम बनाई, एक विषय कत्थर मैंने अत्यात्मा रखो जाए। मनुख संसार छड़ के जा रहा है कि दूसरा समझ रहा है कि मैं सदीगी ना है, उससे मन दृढ़ता नहीं होनी कि मैं भी जाना है। बाबा शेखर जी ने मौत वाले काम चौक किया है कि क्या है कि कट्ठे कहते मापे जिन्हें तू जानो तैं को लग रहे तू अरे आप जीनो। फिर एक उर्दू के शायर ने भी क्या है कि अगर अपनी मौत से कोई बचन नहीं, सामान 100 बचता पर की खबर नहीं, किसी खबर है ना नहीं, पर गुरबानी का फरमान है कि जो है तो चलती सब को आई रवाई है। मनुख की महानता उसके जन्म या मौत नहीं है, बाकी महानता इस बात है कि उसने जन्म तो लैके मर तक जीवन किस तरह जिया है। जब असी परवाह के जीवन के झात मारते हैं तो प्रगट हुआ कि सब तो पहला अपने बाप के सर्व पुत्र सन, उन्होंने अपनी 4 भैनों शिक्षा दी, पढ़ाई करवाई, उन्होंने शादी की। वो सिर्फ सर्व पुत्र ही नहीं सन, बल्कि एक बहुत ही सियाने समझदार पिता भी सन। उन्होंने अपने 3 पुत्रियों के पुत्र मनु बहुत ऊंची शिक्षा दी और उन्होंने सबके ही आज सारे बच्चे अपनी अपनी पीढ़ी के नाम खा रहे हैं। मैं की मिसाल थोड़े सामने है। जब मैं कैरी बैठे में टाकी मार रहे हैं तो उन्होंने तकी बेमिसाल है। उन्होंने LIC सिस्टम शुरू की थी कि अपनी मेहनत ईमानदारी लगन काम करके ड्रीम मैनेजर की पोस्ट तक पहुंचे तो ड्रीम मैनेजर गए। अपने महकमे के इतने हरमन प्यारे सन कि उन्होंने चपरासी को लैके बड़े बड़े अफसर के सारे उन्होंने पूरा सरकार दिए सन। उन्होंने हमेशा लोगों की मदद की थी। गुरबाणी का फरमान है, मन हमारा गुरमुख साहब जी है। अरोड़ा जी गुरमुख सन कि हमेशा ही सुधीरी लोगों के मन वास्ते रहेंगे। सारी वाहिगुरू की अरदास है कि उन्होंने आत्मा अपने चरणों में निवास बख्शे कि परिवार को पाना पाने का बल बख्शे। ये रखी हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण
Krishna